Hello everyone. We are continuing functions. In last video, we did concepts of log and we did some questions as well. I hope you would have revised it, you would have watched it, and you would have had some knowledge on how to approach questions which are related to log while finding domains and every other thing. So we'll be doing some questions today. We'll be finishing up with log. And then if time permits, we'll go ahead and we'll start last transcendental function, which is exponential function as well. Okay, so let's begin. This is the question. We need to find a domain of not so good looking function. You can see it requires a lot of solving. So we'll see how even such questions which doesn't look good can be done. Okay. So the first thing to find domain, as we have learned, that we put all the conditions and we solve all the conditions as we have been doing from last 3-4 videos. So we'll take it. So this has to be greater than 0. So this is log number. We studied in the basic concept of logs that log number has to be greater than 0. So this was okay. So we'll do it. 0 intersection base has to be greater than 0. Base cannot be equal to 1, and intersection whole number, root number inside root, quantity inside root be greater than equal to 0. So that's the condition. So you have to solve all of them, and then we have to take intersection of each one of them. Okay. So we'll solve one by one. So let's solve these two first. Okay. So what do we have over here? We have 2x minus 1 by 3 plus x greater than 0 and log 2x minus 1 by 3 by x greater than 0. Okay. So I have to solve it. I can say 2x minus 1, 3 plus x is greater than 0, and 2x minus 1 by 3 plus x greater than 1. So what happens? This entire thing, if you were to study dice on the first class only, I demonstrated what log means. Okay. So this goes, so anything to the power 0, x to the power 0 is 1. So this would go, this would change side. It would be to the power 0. So this would be 1. Okay. You can see 2x minus 1 upon 3 plus x is greater than 0. And the same fraction 2x minus 1 by 3 plus x is also greater than 1. The same thing. So therefore, we can say that 2x minus 1 by 3 plus x is greater than 1. Okay. Now we can further break it down. Let's see what we can do about this. So this is 1, but we do not have the value now. So let's try to find out the value. Okay. So this is what it is. 2x minus 1 by 3 plus x is greater than 1, or 2x minus 1 minus 3 minus x by 3 plus x is greater than 0, or x minus 4 by x plus 3 is greater than 0. ठीक है. So इससे क्या हो गया हमें? We have one thing यहाँ से we can find out कि x minus 4, तो इसका हो जाएगा मेरा, if I draw a number line, so this is what the intersection of first two functions would be. So इसका क्या होएगा कि इसको x is equal to 4, if I take cross multiply करते हैं तो ये 0 हो जाएगा. So either it would be x would be 4 or x would be minus 3. So take any value within this. तो हमें क्या value आएगा, so that the entire function has to be greater than 0. So if I take any function, so I can take over here this side or this side. So this gives me plus, minus, plus. So I need to see there's no equality sign. So these minus 3 and 4 would not be included. So that's solution number 1. ठीक है. तो हमने पहले दो को सॉल्व करके हमने x का वैल्यू निकाल लिया. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स गो अहेड.
जिसको ये पार्ट नहीं समझ में आया ये कैसे लिया, सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + x आ जाएगा, फिर एक तरफ सबको ले आएंगे तो -3 -x हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट दिस ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेस को। बेस का कह रहा है नाउ सॉल्विंग अगेन। सो सेकंड थिंग इज वी हैव बीन गिवन, हमने सॉल्व करना है x + 4/2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x इज x + 4 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज -4, दिस इज 1। और दूसरा हमने क्या सॉल्व करना था, x + 4/2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इट इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू -2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये 2 आएगा, 4 उधर से, हाँ x इज नॉट इक्वल टू -2। देखो हमें x के कितने वैल्यूज अभी धीरे धीरे वैल्यूज आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो धीरे हमने सारे कंडीशन को सॉल्व कर लिया। तो हम लोगों ने किसको किसको सॉल्व कर लिया, वी हैव सॉल्व दिस फर्स्ट टू एंड वी हैव सॉल्व दीज टू एज वेल। इसको मैंने लिखा नहीं, x + 4/2 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए था इंटरसेक्शन, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस लास्ट। सो वी हैव लॉग, इनफैक्ट माइनस लॉग है वो, माइनस लॉग बेस में लॉग 2x - 1 p + x ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो अभी फिर से याद होगा मैंने पिछले भी क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे लॉग का बेस एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है तो वी डू नॉट नो इफ इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। so whenever we have variable as base, so we have to assume both the things, it can be lesser than 1, it can be greater than 1 as well। ठीक है, सो विल फर्स्ट फाइनलाइज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो पहले देखो ये हमारा माइनस में है ना पूरा, इसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं। इससे क्या होगा, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा इनक्वालिटी का। तो x - 1, जिनको ये बात नहीं समझ में आए कि इनक्वालिटी साइन क्यों चेंज होगा, जस्ट लेट मी नो कि इन द कमेंट बॉक्स में बी आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इनक्वालिटी। ये थोड़ा अलजेब्रा का पार्ट है कि इनक्वालिटी में वेन एवर यू मल्टीप्लाई अक्रॉस थ्रू नेगेटिव साइन, सो व्हाट हैपेंस इनक्वालिटी चेंजेस। सो अभी वही होगा, इनक्वालिटी हैज चेंज्ड। ठीक है, नाउ बेस को हमने सेटल करना है कि बेस हमारा है क्या। तो लेट्स टेक बेस, क्या है हमारा बेस, कैन आइदर बी, base can either be between 0 to 1 or base can be greater than 1। ठीक है, यही दो चीजें हो सकती है। इफ आई go for solving this, I have x + 4 less than 2, so I would have over here, अगर हम इसको इनसाइड आउट यूज करेंगे, इनसाइड आउट यूज करके अगर हम इसको बनाते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आई कैन से 0 x + 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर अब 4 है, 4 को माइनस कर देते हैं, तो -4x -2। सो x इज रेंजिंग फ्रॉम आइदर -4 to -2। और यहाँ पे तो सिंपल है, इसका कोई कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है। x इज ग्रेटर देन -2, अभी ध्यान से देखो, x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2 और x इज बिटवीन -4 to -2। ध्यान से देखो बोथ द केसेस में। नाउ बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि बेस इज ग्रेटर देन 1 ओवर हियर, बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्रॉसिंग द बेस, देखो एज द पावर नो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंजेस, अगर हम बेस को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, अगर हम बेस को क्रॉस करके पावर बनाते हैं, ठीक है, तो इक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगा अगर बेस ग्रेटर देन 1 है। तो ध्यान से देखो, इफ बेस इज greater than 1 and if we cross it, other side sign not change। ठीक है, अगर हमने उसको दूसरी तरफ कर दिया तो उससे साइन चेंज नहीं होता है, नहीं तो साइन चेंज होता है। अभी देखो हमने यहाँ पे भी जब हम सॉल्व कर रहे थे, जब हम इन दोनों को यहाँ सॉल्व कर रहे थे, तो देखो यहाँ लॉग था, है ना, लॉग में बेस देखो क्या है, बेस इज ग्रेटर देन 1, तो हमने इसको इस तरफ भेज दिया, LH से RHS की तरफ भेज दिया,
तो हमारा 2 इधर जाके साइन चेंज नहीं हुआ। अगर ये -2 होता देन साइन वुड हैव चेंज्ड। इफ बेस इज लेस देन 1 देन अपॉन क्रॉसिंग द पावर ऑन अदर साइड साइन वुड चेंज। अगर बेस आपका नेगेटिव है, बेस आपका लेस देन 1 है, और तब आपने साइन चेंज किया, नेगेटिव ही नहीं, अगर लेस देन 1 है, फ्रैक्शन में है तब भी, लेस देन 1 है तब आपने अगर चेंज किया है तो वो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखो पहले केस में क्या है हमारे पास कि x इज बिटवीन -4 यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एंड इन द सेकंड केस वी हैव x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, दो अपने पास केसेस आए, दोनों में से दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि इफ base is less than 1 then and over our sign of inequality changes। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा 2x - 1 x + 4/2 to the power 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो, ओवरऑल हमारे पास क्या इनइक्वालिटी है? ओवरऑल इनइक्वालिटी हमारे पास है लॉग बेस x + 4/2 log 2x - 1 3 + x लेस देन 0। देखो हम इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि बेस हमारा क्या हो सकता है। तो बेस हमने निकाल लिया, बेस कैन आइदर बी बिटवीन -4 to -2 और बेस कैन बी ग्रेटर देन -2। दीज आर द ओनली वैल्यूज दैट बेस कैन टेक। ठीक है, तो हम दोनों किसी के करके सॉल्व करेंगे। तो पहले केस में अगर हम करते हैं तो देखो दिस इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, लॉग बेस 2 है, हमने उस तरफ भेज दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग 2x - 1 3 + x ग्रेटर देन 1। देखो, ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, फिर से बेस है, बेस को हम फिर से चेंज करते हैं, क्रॉसिंग द बेस अगेन। इससे हमारा लॉग हट जाएगा ना, लॉग हट जाएगा तो फिर आसानी से सॉल्व, फिर वो प्योर अलजेब्रा बन जाएगा। तो 2 to the power 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो। तो 2x - 1/3 + x, ये 2 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम सबको एक तरफ लेते आए तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस ये हो जाएगा -7। इसको मैं एक स्टेप और लिख ही देता हूँ। 2x - 1/3 + x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया आपको -6 और -1 -7, और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो -7/3 + x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालने लगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा -3। एक तो ये हो गया, -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की वैल्यू वुड बी माइनस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x वुड बी, मतलब इसका फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। -7/3 + x। तो देखो अगर हम x को -3 ले लेते हैं, अगर हमने -3 ले लिया तो ये पूरा फ्रैक्शन मेरा 0 हो जाएगा, ये पूरा मेरा 0 हो जाएगा इफ x इज -3 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। इट इज ग्रेटर देन 0, so it is greater than 0, this is -7। -7/3 + x, it has to be greater than 0। अगर -3 से हम कोई या इक्वल टू 0, तो द बेस्ट थिंग इज वी कैन टेक -3। दिस इज व्हाट वी कैन टेक। ठीक है, चलो इसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हमने इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट क्या था कि x इज ग्रेटर देन -2। देखो x इज ग्रेटर देन -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो गैस लगाओ, सोचो एक मिनट। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस। चलो आई सॉल्व इट। सो आई एम सॉल्विंग इट डाउन, x इज ग्रेटर देन -2 वी आर सॉल्व। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -2, तो हम क्या करेंगे, लॉग में हम जाएंगे वापस। तो कितना आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा लॉग 2x - 1/3 + x लेस देन 1।
देखो यहाँ पे भी हमने यही किया था ना, एग्जैक्टली वहीं से मैं पिक किया हूँ। देखो यहाँ पे सेम चीज मैंने किया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 2x - 1 3 + x, ये 2 हो जाएगा। और 2x - 1 बाय 3 + x - 2 इज लेस देन 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया मेरा, ये आ जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं x के वैल्यू -3 लेना पड़ेगा। वहां पे भी x का वैल्यू हमने पीछे भी -3 ही लिया था। ठीक हो, यहाँ पे भी x का वैल्यू -3 ही लिया था। -3, अगर हम -3 ले रहे हैं x का वैल्यू, तो ये -3 है। ये इनइक्वालिटी हम नेगेटिव में सॉल्व कर रहे हैं, -3। ठीक है, अगर हम नेगेटिव से चेंज कर देंगे तो -3 या उससे ये -3 हो जाएगा इस तरफ। मतलब कि -3 से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे -3 से छोटा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नेगेटिव साइन था ना यहाँ पे। हाँ हाँ, दिस वुड बी मिस्टेक है ये। दिस वुड बी एक्स। अगर हम यहाँ नंबर लाइन बनाए ना, यहाँ पे भी -3 आएगा, बट इस तरफ आएगा, इंक्लूडिंग दिस साइन। यहाँ पे भी ये साइन इंक्लूड करके इधर आएगा। ठीक है, इस तरफ ये प्लस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम 3 से कोई भी 3 - 3 क्या उससे छोटा, अगर हम -3 से कोई छोटा वैल्यू ले लेते हैं, मान लो -3 से कोई भी छोटा वैल्यू ले लिए, लेट्स से -4 ले लिए। So 3 plus -4 is -1, -1 and -7. Exactly. Take any value. X is greater than, no, X is over here less than equal to -3. Over here, X is greater than equal to -3. तो दोनों केस का सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कि x is equal to -3। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट व्हाट वी कैन टेक, वी कैन टेक x as -3। दैट्स द इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन टेक, है ना। तो हमारा इसको सॉल्व करके भी आ गया। तो हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन आया अभी तक, देखो सारे सोल्यूशन को एक जगह अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन आ रहे हैं। वी आर जस्ट मार्किंग सोल्यूशन बाय, वी आर राइटिंग ऑल द सोल्यूशन ओवर हियर। तो एक सोल्यूशन हमारा पहले आया था, उसमें था कि इज x इज लेस देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन +4। एक सोल्यूशन आया था जब हमने पहले दो इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद हमने बेस को जब हमने सॉल्व किया था, इनक्वालिटी नंबर थर्ड और फोर्थ को जब हमने सॉल्व किया था, तो हमारा आया था x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज नॉट इक्वल टू -2। x जो है वो -2 की वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या सोल्यूशन आया, उसके बाद हमारा सोल्यूशन आया कि x इज लेस देन -3, और कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो हमने सबका इंटरसेक्शन लेना है। चलो एक नंबर लाइन बनाते हैं, बढ़िया सा। ठीक है, नंबर लाइन बनाए हमने। चलो अब सारा पॉइंट, जो भी जितने पॉइंट्स आए हैं ना अभी तक x के, सारे हम प्लॉट कर लेते हैं। हम -2 भी प्लॉट करेंगे, जबकि -2 क्योंकि हमने मेक श्योर करना है कि -2 हमारा इंक्लूड नहीं हो। -2 -3 -4 और 4, ये है ना। देखो, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमने लेना है। हमने लेना है x इज लेस देन -3। ठीक है, एंड x इज लेस देन -3। एंड एक सोल्यूशन आ रहा है हमारा x इज लेस देन -3 एंड इक्वल टू। तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या आ गया, देखो x इज लेस देन -3, यहाँ आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या होगा कि x इज लेस देन -3, तो x इक्वल टू में नहीं जाएगा इन दोनों का, ये हो गया इंटरसेक्शन। अच्छा, इसका क्या है, x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4। तो इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन -4, ये इस तरफ चला गया। ठीक है, x इज ग्रेटर देन +4 एज वेल, ये इधर चला गया। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारे। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये यहाँ आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये भी पार्ट हमारा इस तरफ को चला जाता है, -3 इसको इंक्लूड करके हम इधर से इधर इधर वाली निकलेंगे। हमने देखा सारा कॉमन इंटरसेक्शन कितना आएगा। तो ये एक कॉमन इंटरसेक्शन तो ये आ रहा है, ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। और दूसरा ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये -3 ये इधर चला गया, ये भी इधर चला गया। तो देयर फोर x बिलोंग्स टू
-4 to -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। यार देखो क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देखो, सॉल्व करो, कोशिश करो। देखो क्या होता है पता है क्या, इफ यू सॉल्व क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड, नॉट आउट ऑफ दिस सिलेबस, if it is related but it takes lot of time, it takes lot of things to assemble, although it is easy but it is spreaded, it is scattered. So if you solve such questions na, so your focus would increase because you are thinking about one same thing for a long duration of time. You're solving this question, it is taking time, you are in this entire domain, you are messing things up, you're thinking why is it not happening, how come this answer has come up. So you will redraw things, although you'll be copying it from the screen, but you'll be redrawing on your own. You would have a lot of doubts, and those will be self-created doubt. Those doubts would not be actually real doubt. Those doubts would be there because of lack of concept. So when such doubt comes up, you will be curious, okay, how to get over these doubts, and then you will solve more questions, and gradually you will find these doubts diminishing automatically. Okay, so that's the beauty. And again, in case still it persists, you can always contact me. There's no problem with that. Okay. So chalo, we'll do next question. This is the question. Now again, you see the question is very, very awful. By the look of it, it looks very terrible and impossible to do. But then again, see, you have to remove fear of new question. हमें नए क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है, हमने उसको हटाना है, अपने डर को हटाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, डोमेन निकालने के तरीका हमने पता ही कि हम वी हैव टू राइट ऑल द कंडीशंस, algebraic as well as transcendental conditions, and then we have to simultaneously solve them, and then we have to make a number line and draw all those points and see what are the intersections. That's what it is. So अब जब इतना लंबा चौड़ा आ जाए ना, so what you can do it separately, ठीक है। एक साथ करने जाएंगे तो it will be mixed, खिचड़ी पक जाएगी। So it's better we solve it separately. हम अलग अलग करके बनाते हैं, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो एक मिनट आप पॉज करो और बनाओ उसको, पॉज करके बनाने की कोशिश करो, भले ही 5 मिनट लग जाए, बट ट्राई टू डू दैट। इससे आप देखेंगे कि आप हाउ फार यू हैव रीच्ड। See, even if you're not getting answer or not getting closer to it, but still if you're getting, let's say, 1/3 or maybe 1/2 of the solution, it's very good because this is your first time. Considering your first time or second time, this is a very good progress, because as if now if you are preparing for January attempt or for April attempt, you still have a couple of months, maybe up till October you have time, and you can prepare yourself accordingly. By October we would have finished everything, okay, all physics, all chemistry and all maths, okay. So just be in pace, keep revising, okay. Now let's do it. तो क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया, हमने क्या करना है, हमको सेपरेटली बनाते हैं ताकि हमसे मिस्टेक्स की चांसेस बहुत कम हो। कंडीशंस वही है, सारे कंडीशंस को हम पहले अच्छे से लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो साइन के ऊपर एक्स 0 है ना, वो 0, इट इज साइन एक्स डिग्री, ओके, इट इज साइन एक्स डिग्री बाय 100। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर धीरे 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 बाकी रिमेनिंग फंक्शन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ माइनस है, अभी हम लोगों ने बात किया कि जब भी माइनस हो अक्रॉस द लाइन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी हमारी बदल जाती है। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। ये तो ये रहने वाला है, इसको कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब अगर हम देखें ना, ठीक है, अब देखो इसको इनसाइड का देखो, 1+1/sin x डिग्री बाय 100, 1+1/sin x डिग्री, तो 1+1, ये सेकंड को देखो, 1+1/sin x डिग्री बाय 100, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से, दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड दिस एंटायर फंक्शन, ये जो हमारा पूरा फंक्शन है, सॉरी इट हैज टू बी विद इन, ये यहाँ मैंने 1 कहाँ से लिख दिया, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 ना, 1 कहाँ से आ गई, तो माइनस से साइन किया था ना, 1 आ गया, सॉरी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इस बेस को देखो ना, बेस इज लेस देन 1। हमने क्या पढ़ा था, जब भी बेस, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जब भी लॉग का बेस लेस देन 1 हो और आप उसको क्रॉस ओवर करा रहे हो, उसको उस तरफ भेज रहे हो, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और ये 0 इस पे पावर लग जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, 1+1/sin x डिग्री बाय 100, 1 हो गया, यूनियन 1
प्लस 1/sin x डिग्री/100 ग्रेटर देन 0 हो गया। देखो मैं बीच में से ये लाइन हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया कि सेम फंक्शन ग्रेटर देन 0 भी है, सेम फंक्शन ग्रेटर देन 1 भी है। ठीक है, सेम फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, सेम फंक्शन ग्रेटर देन 1 भी है ना। चलो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 1/sin x डिग्री/100 ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये देखो 1 और 1 है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या आ गया हमारा, sin x डिग्री/100 इज ग्रेटर देन 0। पहले भी हम यहाँ से भी बना सकते थे कि अगर कोई ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 है, यहाँ से 1 1 कैंसिल कर सकते थे, बट वी हैव टेकन एन एक्स्ट्रा स्टेप सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। यहाँ क्या आ गया, ये अबव जो हमने दो कंडीशंस लिए थे उसका सोल्यूशन है। और हम लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है कि वी डोंट सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। वेट, हम आखिर में इसको सॉल्व करते हैं, हम बाकी को सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग फंक्शंस। अब जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको देख लेते, क्या है, log 10x ग्रेटर देन 0, x ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 4 - log x बेस 10 ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x माइनस 4 - log x बेस 10 ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इतने बड़े को एक साथ सॉल्व करना थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, पर बहुत आसान है। देखो सिंपल, यहाँ देखो, लॉग हमने हटाना है। लॉग हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप एक काम करो, बेस को चेंज कर दो। बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस इधर चला गया, कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यूनियन x इज ग्रेटर देन 0, एक नंबर 0 से बड़ा है, एक नंबर 1 से बड़ा है, तो नेचुरली 0 से सब कुछ ही बड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, 4 - log 10x, 4 को उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। देखो, देखो, माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, log x बेस 10 ग्रेटर देन 4 और x इज ग्रेटर देन 10⁴। देखो लॉग की बेसिक डेफिनेशन है ये, बहुत साधारण डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा था, और कितना काम आता है। ठीक है, अब आते हैं असली खेल पे, अब आते हैं इस पे जो सबसे बड़ा है। हम्म, ठीक है, इसमें ना लॉग बेस 10 ना बहुत बार अपेयर कर रहा है। देखो log बेस 10x, log बेस 10x, x x ऐसा। एक काम करते हैं ना, इसको कुछ मान लेते हैं। सो इसे लिखने में आसानी होगी, और कुछ नहीं है। log x बेस 10 को आप कुछ भी मान लो, y मान लो। ठीक है, इसको y मान लेते हैं, तो क्या हो गया मेरे पास, हमारे पास हो गया देन log माइनस log 4 - y माइनस ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आई एम श्योर, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ। लॉग, ये 10 है, लॉग माइनस बी इज नथिंग बट लॉग a/b। ठीक है, तो आप दो लॉग माइनस में हो तो आप उसको सिंपली डिवीजन में ले सकते हैं, डिवीजन में तो सिंपली उसको माइनस में स्प्लिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कन्वीनियंस कि क्या कर रहे हैं, सबको आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस इज, देखो यहाँ पे लॉग बेस सेम है, देखो बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो y/3, 4 - y 0। अगेन लॉग हटाना है, तो देखो बेस इज ग्रेटर देन 10, 10 लॉग हम हटाएंगे तो 10 उधर चला गया, तो ये 1 बन जाएगा। लॉग हटते ये लॉग का सारा खत्म हो जाएगा काम धाम, ये सिंपल क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या बना, 3 4 3 into 4 is 12 - 3y, तो कितना आ गया हमारे पास, y 12 - 3y। और अभी सब जगह से अगर हम कॉमन वगैरह ले लेंगे तो कितना आएगा, 3y
y हो जाएगा 4y, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा y तो इंडिपेंडेंट नहीं है, y को तो हमने अज्यूम किया था, y इज इक्वल टू व्हाट, log 10। log 10x जब मैं बोलता हूँ ना, इसका मतलब हो जाता है कि 10 जो बेस में, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं log x बेस 10, बट वो फिर इंग्लिश में मैथ्स पढ़ने वाली बात हो जाती है, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, अगेन आपने इसको हटाना है, x को हटा देते हैं, तो कितना हो गया, 10⁻³ और 10³ आ, ये x की वैल्यू आ गई कहाँ से, जो हमने ये बड़े वाला ऑपरेशन सॉल्व किया। ठीक है, यहां से मैं इसे लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10⁻³ इनफैक्ट x इज ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। बाकी से हमने लिख ही रखा है x की वैल्यू क्या क्या है, कहाँ कहाँ से है। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने हमने सारे वैल्यूज को फिल्टर करना और देखना है साइन x डिग्री बाय 100। याद रखो, इसको छोड़ना नहीं है। अगर ये साइन x डिग्री नहीं होता ना हमारे पास, तो क्वेश्चन का आंसर अभी तक आराम से बना चुके होते, क्योंकि हमने सारी इनइक्वालिटी सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किया ना, उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर हमने सॉल्व किया, देखो यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 10⁻⁴, ध्यान से देखो, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻3, सर्टेनली x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जितने भी हमारा है इंटरसेक्शन, अगर मुझे लें ये जो पूरा हमने बनाया, सेक्शन ऑफ ऑल 4 इनइक्वालिटी अगर मुझे लेना पड़े, तो x जो है मेरा 10⁻³ से बड़ा और बराबर है, बट 10⁻⁴ से छोटा है। सो दिस इज व्हाट x इज अप टू नाउ, up till now this is x। ठीक है, now we have to take values from this range so that we can include it into the above function that we have to solve yet, and we have to see that the entire function's value is greater than 0। कंडीशन ये है ना, sin x डिग्री बाय 100 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, इसी के लिए इनसाइड आउटसाइड हमने इसी दिन के लिए पढ़ा था। ठीक है, इसी दिन के लिए हमने इनसाइड आउटसाइड पढ़ा है। देखो कितनी बार आपको बचाने आएगा। तो 10³ ये हमारे पास है। चलो, अब हमने x बाय 100 है, मतलब 10⁻², या 10 स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, 10 स्क्वायर हमने डिवाइड कर दिया, 10 बच गया। ठीक है, यहाँ x बाय 100 आ गया, तो ये 10 स्क्वायर आ गया, या 100 बोल सकते हैं, वन सेम थिंग। ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, हमने x पे डिग्री 0 लगाना है। देखो, तो सब पे डिग्री 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 10⁻0 डिग्री। देखो, इनसाइड आउटसाइड में हु बहू जैसे कि तैसा करना है, अपने मर्जी से, कुछ सोच नहीं लेना, कुछ भी नहीं कि ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कुछ भी नहीं सोचना ऐसा, 100/0। अब देखो गौर फरमाओ कि 10 डिग्री, ये 10 डिग्री है, याद रखो 10 डिग्री, 10 डिग्री से 100 डिग्री। तो 10 डिग्री से 100 डिग्री कहाँ कहाँ लाई करेगा, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो, 10 डिग्री से 100 डिग्री कहाँ लाई करेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री। बस अब यहीं पे आईटी स्मार्ट क्वेश्चन पूछती है। देखो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री से लेके, इनफैक्ट 91 लिखना चाहिए, 90 डिग्री से 100 डिग्री, 100 डिग्री, ये किसमें हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिक दोनों होता है, यहाँ पे साइन है तो साइन लिख रहे हैं, साइन पॉजिटिव, मतलब इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें, इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें, हमारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव आना है ना। देखो, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ ऊपर जो भी एक्स की वैल्यू थी, उसको अगर हम डिग्री के टर्म्स में भी लिखेंगे, तो हमारे पक्का पक्की बात है, हमारा सारा वैल्यूज एक्सेप्ट होगा ही होगा। देयरफॉर देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, डोमेन कितना है हमारा, यही हो गया हमारा डोमेन। अगर मुझे लिखना पड़े, एक्स बिलोंग्स टू 10⁻3 10⁻4, ये हो गया हमारा आंसर। देखो, हमने एक्स की वैल्यू यही लिया। ठीक है, और यहां से करते करते हमने पता लगा लिया कि साइन की सारी वैल्यूज, अगर मैं साइन लगा भी दो, साइन की सारी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक के बीच में पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था विद टू मेनी डेटा। सारे डेटा को आपने इंटरप्रेट करके, ब्रेक डाउन करके एकदम पेशेंस से लिखना है। और अगेन आपने देखा, अगर आप सच में ऐसे क्वेश्चन बना भी रहे हो, कॉपी करके ही बना रहे हो, फिर अपने से बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, एंटायर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए क्वेश्चन का कि हमारा थॉट प्रोसेस बने, हमारे एक मेथड बने, अप्रोच बने। ठीक है, और एकदम सब कुछ सेट है, अपने हिसाब से दिमाग से कुछ भी नहीं कर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन कहता है log f(x) बेस 2 इक्वल्स टू लॉग, एक सीरीज दिया हुआ है विद बेस 2
इनटू मल्टीप्लाइड इनटू अगेन लॉग का एक सीरीज दे रखा है एफ एक्स के टर्म में, एक फंक्शन दे रखा है बेस 3 है, एंड f10 दे रखा है एंड f20 हमने निकालना है, गिवन f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलिनोमियल फंक्शन हम पढ़ रखे हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। अब इसमें पता क्या है, कैलकुलस अब जब और आगे की तरफ पढ़ेंगे ना तो आपको एक चीज एहसास होगा कि कैलकुलस वुड डू डबल गुड टू यू। एक तो आपको कैलकुलस कैलकुलस अंडरस्टैंडिंग में बनाएगा ही बनाएगा, इससे नंबर तो दिलाएगा ही दिलाएगा, कैलकुलस आपको अलजेब्रा भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है उसकी ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन भी बहुत करेगा। इसलिए फंक्शंस के बाद में मैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाऊंगा, सो दैट यू नो व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस आर, एंड देन वील मूव प्रोसीड विद कैलकुलस अगेन कंप्लीटिंग कैलकुलेशन, सो दैट आपको वॉइड ना फील हो बीच में। सो कैलकुलस आपके कैलकुलस तो छोड़ ही दो, कैलकुलस आपका अच्छा बनेगा बनेगा, उसके अलावा आपके अलजेब्रा को बहुत अच्छा करेगा, स्पेशली सीक्वेंस सीरीज। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आते हैं, तो सीक्वेंस सीरीज को आप पहचानना शुरू कर देंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन समझेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स आपका दोबारा रिवीजन हो चुका होगा। अगर नहीं है तो मैं बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक फंक्शनल रिलेशन दे रखा है, ठीक है। कोई देखो फंक्शनल रिलेशन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशन में आपको एक साफ सुथरा फंक्शन नहीं दिया होता, कुछ रिलेशन तोड़ जोड़ करके दिया हुआ होता है, और दैट यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम इस सीरीज को देखें जो हमें दिया हुआ है, तो ये जीपी है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इट्स एन इनफाइनाइट जीपी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज व्हाट, और 2/1 - 1/3, तो 3 - 1 2/3, तो 2/3 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 3 आया मेरा। ध्यान से देखिए, ठीक है। सम, ये जो सीरीज है अंदर का, ये सम मेरा 3 आया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या दिया उसको हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे दोबारा क्वेश्चन को लिखना पड़े तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू लॉग, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 थी, इनटू लॉग बेस 3 है, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से हमें कुछ स्टार्ट मिल गया है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, हम्म, ठीक है, तो इसको लॉग बेस 2 3, अच्छा देखो लॉग को हमें वी कैन राइट इट एज मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो लॉग 2 fx को वी कैन राइट इट एज लॉग 1 प्लस fx लॉग 3 बेस, हम लिख सकते हैं 2 1 प्लस fx बाय f1 प्लस x। इससे हमारा fx का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों तरफ अगर हम सॉल्व करेंगे, लॉग बेस लॉग 2 है हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू 1 प्लस fx बाय f(1 प्लस x)। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, f(1 प्लस x) इंटू f(x) इक्वल्स टू f(1 बाय x) प्लस f(x)। देखो, अच्छा यहाँ ना मैं 1 मिनट रुकूंगा, बिकॉज मैं यहाँ आई रियली वांट टू सी इफ यू कैन रिवाइज इट और नॉट, फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व इट, so I'm giving you let's say couple of minutes। चलो देखो, ये मैं इसलिए आपको टाइम दिया बिकॉज ये हमने पहले शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने पढ़ रखा है कि जब भी इस तरह का कोई पॉलिनोमियल, कोई ऐसा फंक्शनल रिलेशन आ जाए, तो दो ही ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो क्या है, आइदर f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n। चलो अब इन दोनों में क्या करेगा वो चेक करते हैं। तो हमें दिया हुआ है f10 इज इक्वल टू 1001, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 + 1, है ना, 1000 + 1, सो 1 प्लस एक्स के बदले हम 10 ले सकते हैं, वी कैन से 10 क्यूब, है ना, f10। इसका मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया, सो वी कैन निगलेक्ट दिस, इसको हम हटा सकते हैं। सो नाउ वी हैव n इक्वल्स टू 3, सो आप f20 का अब दुनिया में कुछ भी निकाल सकते हैं, ये तो बस एक बोगस हो गया। 1 प्लस एक्स टू द पावर n है ना,
So I'll use 1 plus 20 to the power 3. So 1 plus 20 into 20 into 20, making it 8001. देखो आसान क्वेश्चन, फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है, देखो फंक्शनल रिलेशन रिड्यूस हो गया यहाँ पे। जब भी ऐसा रिड्यूस हो, आपको पता है अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दो ही से पॉलिनोमियल फंक्शन है जो सेटिस्फाई हो सकते हैं। अगर ये सीरीज आपने पहचान लिया तो आपने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, इस पूरी सीरीज का वैल्यू 3 निकाल लिया तो हमने रीराइट कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो हमारे पास log बेस 2 बचा, और हमारे पास ये पूरा फंक्शन बचा। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आगे यहाँ से हमने रिड्यूस कर, ठीक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लॉगरिथमिक खत्म हो गया, ठीक है। हम बाद में जब हम पूरी कैलकुलस खत्म कर लेंगे, विल डू लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस अगेन। फॉर द टाइम बीइंग, अंडरस्टैंडिंग के लेवल से जितने भी लॉग के क्वेश्चन थे, वी हैव ट्राइड कवरिंग ऑल ऑफ देम। यू वुड रियलाइज कि कोई भी दो क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं। द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज कि यू शुड लर्न न्यू कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर, सो दैट व्हेन यू आर इन एग्जाम यू डोंट फील कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा। व्हेन यू वुड बी preparing for exam, you would find each and every question that is, you would see, if not each and every, most of them, you would find them that you have read those things before as well. Okay, so stay tuned. Please like if you have learned something, and please subscribe to the channel. If you have any doubts, so you can always consult me. This is the WhatsApp wherein you need to ping. You can take a photo of your doubts, you can mention your name, and you can straight away send me a voice message. Or if you are unable to do a question in maths or physics or chemistry, you can just take a picture and you can send it to me कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा है, please help me out. So it's 8877156094. This is only for doubts, so please make sure you don't send me other good morning, good evening messages. Okay, thank you guys, thank you for your time. Let's meet you in another lecture. Bye bye.